سب سے پہلے آپ کو بتائیں پرنسپل ایچسن کالج مائیکل اے تھامسن نے سیاسی مداخلت پر استعفیٰ دے دیا۔ گورنر پنجاب کی انتقامی کارروائیوں کی چارج شیٹ بھی پیش کر دی۔ کہتے ہیں گورنر ہاؤس کے فیصلوں نے انتظامی امور میں خرابی پیدا کی، چند افراد کی خاطر پالیسیوں میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئی۔ ممبر ایچسن کالج بورڈ آف ڈائریکٹر سید بابر علی نے بھی استعفیٰ دے دیا۔ گورنر ولی الرحمان پر گزشتہ سال بھی 50 سے زائد داخلے خلاف میرٹ کرانے کا الزام ہے۔ طلباء کے والدین کا گورنر پنجاب کے خلاف انکوائری کا مطالبہ۔ پرنسپل کالج مائیکل اے تھامسن نے استعفیٰ دے دیا۔ پرنسپل مائیکل اے تھامسن کالج میں سیاسی مداخلت کے خلاف ڈٹ گئے، میرٹ کے برعکس داخلوں سے انکار کر دیا۔ مائیکل اے تھامسن نے اپنے سٹاف کے نام پر خط میں لکھا، گورنر ہاؤس کے فیصلوں نے انتظامی امور میں خرابی پیدا کی، انتہائی بری گورننس کے تسلسل کی وجہ سے میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں بچی۔ کالج کی شہرت کی حفاظت کے لیے بھرپور کوشش کی، چند افراد کی خاطر پالیسیز میں تباہ کن تبدیلیاں لائی گئیں۔ 1 اپریل سے کالج چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ معروف صنعتکار بابر علی نے ممبر بورڈ آف ڈائریکٹرز ایچسن سے استعفیٰ دے دیا۔ بابر علی نے اپنے استعفے میں پرنسپل ایچسن کالج مائیکل اے تھامسن کی تعریف کرتے ہوئے کہا، انہوں نے کسی بھی پرنسپل سے زیادہ کالج کے لیے محنت کی۔ انہوں نے بورڈنگ کی تعداد کو 500 تک بڑھا کر کیمپس کو نئی زندگی دلائی۔ مائیکل اے تھامسن کی سرپرستی میں تینوں سکولز میں تدریس کا معیار کافی حد تک بہتر ہوا ہے۔ گورنر نے گزشتہ سال بھی 50 سے زائد بچے میرٹ کے برعکس داخل کرائے تھے۔ طلباء کے والدین نے گورنر پنجاب کے خلاف انکوائری کا مطالبہ کر دیا۔ میٹرک کے بعد 9ویں جماعت کا پرچہ بھی آؤٹ، صرف 15 منٹ بعد یہ سوالیہ پرچہ کیسے باہر آ گیا؟ ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ لاہور بورڈ پر برس پڑا۔ چند روز قبل 10ویں جماعت کا سوالیہ پرچہ بھی 5 منٹ پہلے ہی مارکیٹ میں آ گیا تھا۔ بورڈ کے لیے سوالیہ پرچوں کی سیکریسی رکھنا مشکل ہو گیا۔ پرچہ شروع ہونے کے 15 منٹ بعد سوالیہ پرچہ واٹس ایپ کے ذریعے آؤٹ ہونے لگا۔ میٹرک کے بعد 9 جماعت کے امتحانات میں بھی پرچہ 15 منٹ بعد آؤٹ ہونے لگا۔ لاہور تعلیمی بورڈ تمام تر اقدامات کے باوجود بے بس ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے بورڈ انتظامیہ کو انتباہ جاری کیا ہے۔ محکمہ ہائر ایجوکیشن نے بورڈ کو سیکریسی مینٹین رکھنے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس سے قبل میٹرک امتحانات میں بھی لاہور بورڈ کی جانب سے سوالیہ پیپرز آؤٹ ہونے پر تھانہ سول لائنز میں کنٹرولر امتحانات کی جانب سے FIR درج کروائی جا چکی ہے۔ میٹرک کا امتحان شروع ہونے سے 5 منٹ پہلے سوالیہ پیپرز آؤٹ ہونے کا معاملہ۔ لاہور بورڈ نے سوالیہ پیپر لیک کرنے پر نامعلوم افراد کے خلاف FIR درج کروا دی ہے۔ کنٹرولر امتحانات عرفان احمد کی جانب سے تھانہ سول لائنز میں درخواست جمع کروائی گئی۔ لاہور بورڈ کا سائبر کرائم کے تحت متعلقہ افراد کے خلاف کارروائی کرنے کا مطالبہ آیا ہے۔ سوشل میڈیا پر سوالیہ پیپرز آؤٹ کرنے والے عناصر کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ خطرے کی گھنٹی بج گئی، ڈینگی مچھر نے دوبارہ سر اٹھا لیا۔ رواں سیزن میں وائرس کا پہلا مریض رپورٹ ہوا ہے۔ شالامار ٹاؤن کے 19 سالہ افضل میں ڈینگی بخار کی تصدیق ہو گئی ہے۔ شالامار ٹاؤن کے 18 سالہ افضل کی ڈینگی بخار میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ گنگا رام اسپتال میں افضل کو بخار کی شکایت کے ساتھ لایا گیا تھا، جس کے ڈینگی بخار میں مبتلا ہونے کی تصدیق ہوئی ہے۔ حالیہ سیزن میں مچھروں کی افزائش بڑھنے اور مزید کیسز سامنے آنے کا خدشہ ہے۔ اب آپ کو بتائیں ٹوٹی پھوٹی سڑکوں اور گلیوں کی تعمیر کا منصوبہ 12 ارب کا پیکج تیار کر لیا گیا ہے۔ کابینہ کی منظوری کے بعد شہر کی تمام سڑکیں مرمت کی جائیں گی۔ نالیوں، گلیوں اور سیوریج پر بھی کام ہوگا۔ شہر کی اسٹریٹ لائٹس بھی پھر سے جگمگائیں گی۔ لاہور شہر کی تمام ٹوٹی پھوٹی سڑکیں، گلیاں، نالیاں، بند اسٹریٹ لائٹس اور سیوریج کی مرمت کا فیصلہ کر لیا گیا۔ محکمہ بلدیات نے منصوبے کے لیے 12 ارب روپے کا پیکج تیار کیا تھا۔ کابینہ کی منظوری کے بعد شہر کی تمام سڑکیں مرمت کی جائیں گی۔ لاہور کی نالیاں، گلیاں اور سیوریج پر بھی کام ہوگا، جبکہ لاہور شہر کی تمام اسٹریٹ لائٹس بھی بحال کر دی جائیں گی۔ محکمہ بلدیات نے کابینہ کی منظوری کے لیے پیکج تیار کر لیا ہے، جسے کابینہ کے سامنے پیش کر کے منظوری دی جائے گی۔ اب آپ کو بتائیں کہ حکومتی خزانے پر میگا منصوبوں کا بوجھ ہلکا کرنے کی پالیسی، حکومت کا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کو ترجیح دینے کا فیصلہ، پنجاب کے بڑے محکموں کو PPP موڈ اپنانے کی ہدایات۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات، ہاؤسنگ اور دیگر محکموں کو واضح ہدایات جاری کر دی گئی۔ حکومت سرمایہ کاروں کے ذریعے منصوبوں کی تکمیل کا حکم دے دیا ہے۔ پنجاب کے بڑے محکموں کو PPP موڈ اپنانے کی ہدایت دے دی گئی۔ محکمہ مواصلات و تعمیرات، ہاؤسنگ اور دیگر محکموں کو واضح ہدایت دی گئی ہیں کہ وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے منصوبوں پر فوکس کریں اور PPP موڈ پر ان کی تکمیل کو یقینی بنائیں۔ محکمہ خزانہ پنجاب نے بھی مستقبل میں میگا منصوبوں کو PPP موڈ کے تحت بنانے کی سفارشات کی، جس پر نئے مالی سال کے بجٹ میں زیادہ غور کیا جا رہا ہے۔
निगरां हुकूमत में गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए किए गए इकदामात नजर अंदाज। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने माफिया की मिली भगत के साथ गैर कानूनी तामीरात में बेतहाशा इजाफा करवा दिया। LDA शोबा टाउन प्लानिंग ने मुतादिद ज़ेर तामीर गैर कानूनी तामीरात पर आंखें मूंद लीं। जौहर टाउन, मेन बुलेवार्ड, खयाबान फिरदौसी, प्राइवेट हाउसिंग स्कीम्स में दर्जनों गैर कानूनी तामीरात जारी हैं। शौकत खानम फ्लाईओवर से आगे खयाबान जिनाह पर मेन रोड पर बगैर पार्किंग स्पेस तामीर जारी है। अल्लाहू गोल चक्कर पर गैर कानूनी तौर पर बालाई मंजिल ज़ेर तामीर है। LDA शोबा टाउन प्लानिंग जोन 4 में मुतादिद तामीरात बगैर नक्शा मंजूरी और मंजूर शुदा नक्शा की खिलाफ वर्जियाँ जारी हैं। LDA की मुबैना मिली भगत से शोबा टाउन प्लानिंग अफसरान की ईद से कबल चांदी हो गई है। माफिया ने LDA से मिली भगत के तहत रमजान में नरमी और ईद की तातीलात में तामीरात में तेजी कर दी है। महकमा एक्साइज प्रॉपर्टी टैक्स के डिफाल्टर से 25.5 अरब से ज़ायद के बकायाजात वसूल करने में नाकाम। लाहौर में 9 अरब के बकायाजात में सिर्फ 45 करोड़ वसूल किए जा सके। महकमा एक्साइज की नाकिस हिकमत अमली की वजह से डिफॉल्टर से कई साल से वाजिबुल अदा 27 अरब प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी ना की जा सकी। गुज़िश्ता एक साल में 1.25 अरब रुपए लाहौर समेत पंजाब भर से वसूल किए जा सके। आदादो शुमार के मुताबिक लाहौर में 9 अरब से जायद टैक्स डिफॉल्टर्स की जानिब से वाजिबुल अदा हैं। गुज़िश्ता एक साल में बकाया जात में से सिर्फ 45 करोड़ से जायद वसूल किए जा सके। 6 अरब के टैक्स अदालतों या एक्साइज ऑफिस में अपील ज़ेरे इल्तिवा है। 21 अरब के करीब प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी मुमकिन है। लाहौर में 5,86,000 समेत पंजाब भर में 20,56,000 यूनिट से प्रॉपर्टी टैक्स वसूल किया जा रहा है। DG एक्साइज ने बकाया जात की रिकवरी के लिए खुसूसी इकदामात का हुक्म दे दिया है। छोटे दुकानदारों को भी टैक्स नेट में लाने की रजिस्ट्रेशन के बाकायदा आगाज का फैसला किया गया है। FBR ने टैक्स का दायरा बढ़ाने के लिए नई हिकमत अमली मुरतब कर ली है। टैक्स वसूली 15 जुलाई से शुरू की जाएगी। 1 अप्रैल से डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स और इंपोर्टर्स समेत छोटे दुकानदारों को भी टैक्स नेट में लाया जाएगा। इब्तदाई तौर पर लाहौर समेत दीगर 6 बड़े शहरों में रजिस्ट्रेशन का बाकायदा आगाज होगा। FBR डीलर्स, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर और इंपोर्टर्स की रजिस्ट्रेशन एक खास स्कीम के तहत करेगा। स्टोर, दुकानें, वेयर हाउसेज और कारोबारी दफातर के मालकान लाजमी रजिस्ट्रेशन कराने के पाबंद होंगे। पहली टैक्स वसूली 15 जुलाई से शुरू होगी। दुकान की सालाना रिटेल वैल्यू के हिसाब से ताजिरों से टैक्स वसूल किया जाएगा। हर दुकानदार सालाना कम से कम 1200 रुपए टैक्स की मद में लाजमी देगा। हर माह 15 तारीख से पहले टैक्स देने की सूरत में ताजिरों को 25% रियायत दी जाएगी। FBR ने इतराज या तजावीज के लिए 7 दिन की मोहलत दे दी, जबकि लाजमी रजिस्ट्रेशन स्कीम पर स्टेक होल्डर से भी राय तलब की गई है। माले मुफ्त दिले बेरहम। PIC के आउटडोर में गरीब मरीजों के लिए कायम फार्मेसी को पार्किंग शेड में कर दिया गया। खुली जगह की वजह से अद्वियात की तासीर खत्म होने और ज़ाया होने का भी खदशा पैदा हो गया। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी इंतजामिया का अनोखा फैसला। PIC के आउटडोर में कायम फार्मेसी खुले आसमान तले शिफ्ट कर दी गई। PIC की OPD की तज़ीन और आयश के बाद फर्स्ट फ्लोर पर मुस्तहिक मरीजों के लिए कायम फ्री फार्मेसी को किसी मुनासिब जगह के बजाय पार्किंग शेड में खुली जगह मुंतकिल कर दिया गया। अद्वियात ज़ख़ीरा करने के कवायद और ज़वाबित की संगीन खिलाफ वर्जी करते हुए धूप में रख दी गई हैं। शहर भर में तजावुज़ात कायम। तजावुज़ात माफिया का मरकजी शाहराहों पर कब्जा। ट्रैफिक भी जैम रहने लगी। शहर के दीगर इलाकों की तरह मुल्तान रोड, मोलनवाल चौक पर तजावजात की भरमार। शहरी ख्वार होने लगे। फ्रूट फरोश, दुकानदार और रिक्शा ड्राइवर्स मरकजी शहरों के बीचों बीच कारोबार से जाने में मसरूफ। मेन चौक पर चिंची रिक्शा ड्राइवर्स ने खुद साख्ता स्टैंड बना लिया। गैर कानूनी रुकावटों की वजह से सड़कें सुकर गयीं। शहरियों ने हुकाम बाला से नोटिस लेने का मुतालबा किया है। मेन GT रोड सुल्तानपुरा स्टेशन के बाहर तजावजात का खात्मा न किया जा सका। पथाड़ेदारों और रेहड़ीबानों का रश। फल और सब्जी फरोशों ने ठेले लगा रखे। ट्रैफिक 3 लेन की बजाय 2 लेन में रवा। शहरियों को कहना है ट्रैफिक के मसाइल हल किए जाएं। हाल रोड पर बाइक्स और गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग मामूल बन गई। फुटपाथ और रोड के दोनों जानब गाड़ियां पार्क होने लगी। दुकानदारों और शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं जिले इंतजामिया मसाइल हल नहीं कर रही। सूबे भर में पतंगबाजी के खिलाफ मुहिम जारी। लाहौर समेत सूबे भर में इंसदाद कार्ड फ्लाइंग एक्ट के तहत बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। सैकड़ों मुकदमा दर्ज। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान पतंगबाजी में मुलविस 512 मुल्जिमान गिरफ्तार हुए।
के कब्जे से 59,877 पतंगे, 700 डोर के पिन्ने और चरखियां बरामद हुई। एक माह से जारी क्रैकडाउन में 2,855 मुकदमात दर्ज हुए और 2,991 अफराद गिरफ्तार किए गए। मुल्जिमान के कब्जे से 10,05,076 पतंगे, 2,791 चरखियां बरामद की गयी। IG पंजाब की जानिब से हिदायत की गई है कि CCPO लाहौर, RPOs, DPOs पतंगबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाएं। धाती डोर और पतंगों की तैयारी, खरीदो फरोख्त और इस्तेमाल में मुलविस अफराद को कानून के कटहरे में लाया जाए। पतंगे और डोर ऑनलाइन फरोख्त करने वाले अनासिर के खिलाफ भी सख्त एक्शन लें। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वज़ीर आला मरियम नवाज और क़ायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर महमद पेकासी की मुलाकात हुई है। जाती उम्रा में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। तुर्क सफ़ीर की जानिब से मुख्तलिफ शोबों में पंजाब हुकूमत के साथ ताउन बढ़ाने की यकीन दहानी करवाई गई। वज़ीर आला मरियम नवाज और क़ायद मुस्लिम लीग नून मोहम्मद नवाज शरीफ से तुर्किया के सफ़ीर की मुलाकात हुई। मुलाकात में हाउसिंग, सियाहत, तालीम, सेहत और वोकेशनल ट्रेनिंग समेत दीगर शोबों में इश्तराक कार फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया है। अब आपको बताएं, सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन की ज़ेर सदारत इजलास रमज़ान रिलीफ पैकेज की निगरानी वज़ारती कमेटी ने मामलात का जायज़ा लिया। इजलास में सूबाई वज़रा बिलाल यासीन, आशिक हुसैन करमानी, उज़मा बुखारी और मुतल्लिका महकमों के सेक्रेटरीज़ ने शिरकत की। इजलास के दौरान वज़ारती कमेटी ने मुर्गी के गोश्त की कीमतों में कमी के लिए फ़ौरी इक़दामात की हिदायत की और कहा कि आखिरी अरसे में पोल्ट्री की मार्केट में सप्लाई पर कड़ी नज़र रखी जाए। सूबाई वज़ीर सनअत व तिजारत चौधरी शाफ़े हुसैन ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब की तारीख के सबसे बड़े रमज़ान पैकेज की तरसील लोगों की दहलीज पर कामयाबी से जारी है। लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में इंटरनेशनल इस्लामिक गार्डन सेंटर की जानिब से नज़ुल कुरान कन्वेंशन का इनेकाद किया गया, जिसमें सदर II गार्डन सेंटर आमिर कमर मलिक ने कन्वेंशन के शुरका को अपनी किताब 224 कमांड्स ऑफ दी होली कुरान से मुतालिक आगाही दी। नज़ुल कुरान कन्वेंशन में लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, काशिफ अनवर, सदर इस्लामी गाइडेंस सेंटर आमिर कमर मलिक, मुफ्ती मोहम्मद उमर, मोहम्मद मजीद चौधरी, हाजी मुनीर अहमद, मोहम्मद मजीद चौधरी, चैम्बर अराकीन और मुख्तलिफ शोबाए हाय ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने शिरकत की। अब आपको बताएं कि रावी रोड कृष्णा मंदिर में हिंदू बरादरी का मजहबी त्यौहार होली मनाया गया। रंगों में डूबे बच्चों नौजवानों ने जोश व खरोश से होली मनाई। होली पर हिंदू नौजवानों की जानिब से म्यूजिक पर खूब रक्स भी किया गया। मजीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं अफशा रिजवान से। जी अफशा, बताइएगा होली की क्या सूरत हाल रही और कैसे एंजॉय किया हिंदुओं ने इस होली को? मौजूद है कृष्णा मंदिर में, जहां पे मुल्क भर की तरह होली का त्यौहार बड़े जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। हिंदू बरादरी की कसीर तादाद यहाँ पे मौजूद है, साथ ही साथ मुस्लिम लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं और वो अपने बरादरी के जो लोग हैं, हिंदू बरादरी के जो लोग हैं, उनके साथ होली का त्यौहार मना रहे हैं। मजीद जानेंगे होली के त्यौहार के उहदेदारीन से कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी क्या अहमियत है उनके मजहब में। मुझे बताइएगा कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और क्या अहमियत है। देखो जी, ये बुराई के खात्मे का है और सच का है, फतेह का है और इसके कई वजूहत हैं। 2 वजूहत हैं। एक प्रहलाद भगत के नाम से ये है, दूसरा श्री कृष्ण भगवान ने हमारे बिंद्रावन में इंडिया में एक शेर है, अपने बचपन के दोस्तों के साथ होली का त्यौहार मनाया था, इसलिए हमारे हिंदू ये त्यौहार मना रहे हैं। अफशा रिजवान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।